let us start. Okay, sir. Yeah, you please start. Yes, sir. So welcome to MoTV show. I am Binuja, your host for this session. A warm welcome to all the participants, EMOHA elders. The topic for today's session is emotional health for memory care in elders. To guide us on this, we have with us Dr. Gaurav Gupta. A few words about doctor. So doctor is a senior consultant psychiatrist practicing in Delhi NCR, and he is the founder of Tulsi Psychiatry and Rehabilitation Center and Tulsi Home for patients with chronic mental illness, which are all in South Delhi and also in Gurgaon. The organization is successfully running for more than 15 years, and he is a recognized speaker at various mental health related conferences and clinical psychology conferences. And also we know that Dr. G.S. Grewal sir also here to moderate this session. He is a senior consultant elder care Fortis Escort Hospital. So now, without taking any more time, I am welcoming both of you to this MoTV show, and please take over from here. Dr. Sir, please take over from here. Thank you. Sir, unmute कर लीजिएगा. Please unmute and start. Okay. Thank you very much. Namaskar and good evening, all of you. Once again to the Tuesday evening 4 p.m. talk show on quality of life issues. अगर आप याद करें तो पिछले Tuesday को I spoke to you about memory, यादाश्त. I just want to refresh one slide. If you remember this slide, this was a slide which I showed you about three things: forgetfulness, mild cognitive impairment, and Alzheimer's. Now, these are the three issues I told you. And before we start, let me all share with you that today, the 21st of September, is observed as World Alzheimer Day. And World Alzheimer Day is not to celebrate somebody or some illness. It is a day when we remember. I personally feel I remember this day by giving a salute to all the caregivers, the relatives of those elders who are struggling with the Alzheimer memory loss disease. I don't say that they are suffering. I say that they are struggling. So the credit goes to all of your relatives, the relatives of all the elders who are struggling with Alzheimer's. So मैं आप सबको साथ लेके उन सारे caregivers को आज नमन करता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के लोगों की वजह से हमारे इतने elders are being able to pass their last few years of journey with dignity. I've just come abhi dopaher ko. I just saw a lady, she's about 92. बहुत खांसी हो रखी थी. And I've been seeing her for all Alzheimer का है वो बीमारी. मैंने जाके कहा उनको नमस्ते चावला. She looked up. उसका लड़का कहता डॉक्टर साहब हम इतनी बार बुलाते हैं नहीं देखते. They were all so happy. एक स्माइल, आपके रिश्तेदार आपको एक स्माइल दे देते हैं, लगता है कि आपको दुनिया मिल गई. That is the bond that we have with our elders. So last time we spoke about memory. This time उसी continuity में it's important कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि मेमोरी को मैंने तो बताया कुछ बीमारियां जो इफेक्ट करती हैं, लेकिन हमारे सोच मेमोरी को कैसे इफेक्ट करती है. इमोशंस के बारे में the best people to talk about the emotions are the psychiatrists,
And today it's a great privilege that I have with me Dr. Gaurav Gupta, young budding psychiatrist, my colleague from my medical college. Feels very proud that he is sharing the dais with me, and he shall speak to you about emotional issues and how to look after emotional issues जो कि मेमोरी की बीमारी को बढ़ाए ना. So टॉपिक थोड़ा पेचीदा सा है, पर साइकियाट्रिस्ट की ये एबिलिटी होती है कि वो मुश्किल चीज को भी आसानी से पेश कर देते हैं. So it's a pleasure, Gaurav, to welcome you, and you have any language you can speak in. Sign language is also good. They understand everything. So most welcome. Gaurav, you're muted. Awaz, you're muted. Thank you, sir. Thank you. And namaskar to everybody. Good evening, everybody. Good evening, sir. We can hear you. Please go ahead. So मुझे थैंक यू वर्ल्ड डिमेंशिया डे में ये मौका मिल रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ अपने थॉट शेयर कर सकूं, एंड दैट्स ए ग्रेट प्रिविलेज. एंड डेफिनेटली these days the problem is becoming prevalent, and we see a lot of them, and there are a lot of issues which I will like to share. So basically last 2 साल में बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो था, and as a doctor I was feeling very handicapped, and मैं ये सोच रहा था कि कैसे हम चीजों को बेटर कर सकते हैं. So मैं स्टार्ट करते हुए मेरे पास जेंटलमैन आए और उन्होंने अपनी फैमिली ने अपनी कुछ स्टोरी इस तरह शेयर करी कि हमारे फादर हैं, 73 साल के हैं, एंड कोविड से पहले तो ये बड़े एक्टिव होते थे, सबसे इंटरेक्ट करते थे. सुबह को इनको वॉकिंग का एक ग्रुप था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड पिछले 1.5 साल से ये केवल घर में हैं. हम इनको बाहर ही नहीं जाने देते हैं. अधिकतर हम लोग भी इनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं. जो भी बात करनी होती है वो फोन के माध्यम से करते हैं. ग्रेजुअली देयर इज ए बिग डिटोरिएशन इन हिम, एंड दे एक्सपेक्टेड कि ये शायद इमोशनल ट्रॉमा की वजह से जो इनको दिक्कतें आई वो किसी तरह से हम वापस ला सकें. अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था कि एज ए डॉक्टर मेरे पास बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, एंड समवेयर ऑल्सो रियलाइज कर रहा था कि इमोशनल सेटबैक्स हम लोगों को अचानक से कितना हैंडीकैप कर देते. नाउ इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने पिछले कुछ सालों में देखे. मुझे प्रैक्टिस करते हुए अंदाजन 30 साल हो गए, और मैं रिहैबिलिटेशन का वर्क करता हूँ. एक तुलसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रन करता हूँ, एंड तुलसी हेल्थ केयर साइकेट्री पेशेंट्स को देखता है, बट कभी कभी हम लोगों के पास कुछ पेशेंट्स डिमेंशिया के भी आ जाते हैं केयर के लिए. रादर हम लोगों का एक हाफवे होम है जिसमें अंदाजन 5 से 7 पेशेंट डिमेंशिया से 5-7 डिमेंशिया के पेशेंट हम लोगों के यहाँ रहते हैं, और वो पेशेंट्स हैं जिनको साथ में कोमॉर्बिड स्किज़ोफ्रेनिया और अदर बीमारियां हैं. कई बार
बड़ा ट्रॉमेटिक सा एक्सपीरियंस होता है। और जो सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि एक जेंटलमैन जो बहुत ही समझदार, उनके 3 बेटियां और सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से 85 इयर्स की एज में उनको कुछ सेक्सुअल अर्जेस होने लगी और वो उनको संभालने में असमर्थ रहे। और उनकी फैमिली के लिए ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था, इस चीज को कैसे हैंडल करें। सो एल्डर केयर इज बिकमिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड thankfully sir gave me this opportunity to come and have some time with you. rather कई बार मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे एक डिमेंशिया केयर होम चालू कर देना चाहिए, बिकॉज डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही। नाउ एल्डर्स में कुछ इमोशनल रिएक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा, and it start with lot of guilt, lot of loneliness, sometimes a feeling of helplessness। ये बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि यार अब हम कमजोर हो गए हैं, क्या होगा। कई बार हम अपनी चीजों में बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और अपनी बात ही करना चाहते हैं। गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी। एंड कई बार जब हम कोई इंपॉर्टेंट चीज लूज कर देते हैं तो ग्रीफ रिएक्शन होता है। एंड ये ग्रीफ रिएक्शन भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने लगा है, स्पेशली कोविड टाइम में। बहुत सारे कपल्स थे जिनमें एक पार्टनर को कोविड ने छीन लिया और दूसरा जना बहुत ही गिल्ट में, ग्रीफ में रह गया कि मेरी लाइफ का क्या फायदा है, इससे भगवान मुझे भी ले जाता। नाउ इस तरह के रिएक्शंस काफी कॉमनली हम लोग देखते रहते हैं और कई बार हमें मुश्किल होता है उन रिएक्शन को संभाल पाना। कई बार हमें उन रिएक्शंस के लिए मेडिसिन यूज करनी पड़ती हैं, कई बार समझाने की कोशिश करते हैं और फैमिली के सारे एफर्ट के बावजूद भी कई बार कोई आउटकम नहीं आता है और हम लोग फील करते हैं कि एज ए डॉक्टर वी आर जस्ट बीइंग देयर बट नॉट एबल टू डू मच। सो समवेयर वी ऑल live with our own limitations and simultaneously जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं हमारी लिमिटेशंस कम होती जाती हैं और हमारी सीमाएं बहुत ही सीमित होती जाती हैं। हमारी बॉडीली एनर्जी, मेंटल एनर्जी, ये सब चीजें बहुत डिमिनिश होती जाती हैं। उसी तरह से जब हमारी मेमोरी और ब्रेन के फंक्शन इफेक्ट होने लगते हैं, so that is known as dementia. Now dementia में most of the time presentations behavioral emotional reaction से होती है। Memory is just one component of brain. It's not the only component. बहुत सारी बार हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन से प्रेजेंट हो रहा है, बहुत सारी बार डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से उसका मेमोरी थोड़ी बेटर हो जाती है, उसका लाइफ बेटर हो जाता है। एंड ग्रेजुअली ये स्ट्रगल कैरी ऑन रहता है। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस वेयर वी कैन ओनली सपोर्ट ऑल ऑफ यू, नॉट रियली क्योर द प्रॉब्लम। ना मुझे थोड़ा सा समय दिया गया और बहुत सारा कुछ मैंने पढ़ा, बट मुझे ये लगा कि वेलबीइंग पे फोकस होना ज्यादा जरूरी है बेमुकाबले निगेटिव साइड पे। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ही जरूरी है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है
कि हम हालात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं। अपने हालात में एडजस्ट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के साथ अपने सारे फंक्शंस को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इफ वी हैव ए पर्पस फॉर आवर लाइफ and if we can have a emotional and spiritual growth, then somewhere having a emotional well-being is much better. These are few of the things which can help us to prevention of memory loss, the physical activity, becoming mentally active, socialize regularly. We have to be little organized. If we are messy, we get confused. If our house is surrounded with lot of chaos, it becomes difficult. Sleeping and eating is the most important thing which our brain requires. And managing the medical condition with the uttermost sincerity. When I was seeing about today's presentation, and I realized that diabetes, blood pressure are the two most difficult things to manage, and they are the most of the time the cause of this kind of a situation. So definitely managing the medical condition is significantly important. Now, we have to emotional well-being के लिए we have to maintain and keep our mind active with some hobbies, with some games. We have to be physically active. We have to remain socially active by connecting with friends. We can pick up new hobbies. We can volunteer or caring of the pet. So pet is another very healthy and rewarding thing which can help us to grow emotionally. So I'm not going to talk much. It's a brief presentation, and most of the time what I am emphasizing is that emotional issues are very common in elderly. And emotional reactions and emotional issues can precipitate the memory related issues. They are interlinked. Lot of time we go through some stress reaction, and that causes us to have the emotional reaction. And lot of time our problem is related with emotional and stress. The depression, anxiety are common psychological problems, and somewhere if we want to remain healthy, we have to indulge in all these activities to keep ourselves active. Thank you. Can you stop the sharing? Stop sharing. Yeah. Okay, so Gaurav, that was simple overview. बाकी सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक ओवरव्यू था. हम सब कहते हैं कि जी एल्डर्स को ये करना चाहिए, एल्डर्स को ये करना चाहिए. अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कीप अ पेट, एक कुत्ता पालना है. Does it? Is it only good because it will create मेरा emotional bondage बढ़ेगा, लेकिन पेट पालने का जो काम बढ़ेगा, फिजिकल काम बढ़ेगा, will that become a issue with me, or will pleasure overcome that? मुझे काम करना, pleasure उस पेट का इतना अच्छा लगेगा मुझे कि I won't mind doing that amount of extra physical work
to look after the pet. Is that an issue you would like नहीं, to talk? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. देखिए, पेट पालने का जो मेन रीजन है वो बहुत सारे एस्पेक्ट से जुड़ा है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जुड़ा है लोनलीनेस से. लॉट ऑफ अस फील लोनली एंड दैट टाइम ए पेट कैन बी अ बिग सपोर्ट. नाउ lot of us are physically inactive and that time maybe going for a walk with the pet, it becomes a blessing in disguise, which will force us that we remain active. Now as we feed pet, we get motivated to feed ourselves. We have the emotional bonding, we interact, we take our pet, and as pet socialize, we also end up socializing. Good. And then we look forward to doing something. So the responsibility, taking those responsibilities are important aspect of life. And lot of time when we don't have responsibility, we feel that we are not important part of a humankind. So we become completely isolated, and lot of elders these days feel that. So it's not purely just burden, rather it's a lot of things that. I'm glad Gaurav you brought it out in that. इसको पेट को देखिए, डॉक्टर गौरव ने एक नजरिया ये दिया कि अगर आपका पेट के साथ एक बॉन्डेज हो गया तो वेरी मच पॉसिबल है कि उसको फीड करने में जो खुशी आती है, द पर्सन हिमसेल्फ स्टार्ट्स लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ. सो इनडायरेक्टली वो जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट है आपकी, दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन मेनी पीपल. So the zeal to do something goes away. क्या करना है? अरे मैं जब उठूंगा तब खा लूंगा, कोई बात नहीं, आप नहीं खाया तो नहीं खाया. ये जो ऐसी जो फैसले होते हैं, वेरी ग्रेजुअली वो आपके माइंड को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और पता ही नहीं लगता कि कब आपका माइंड उस एक्टिव स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में चला जाए और फिर इनएक्टिव हो जाए. It is very important. It is very important. Each one of you, एक एक इंसान जो हमारी बात यहाँ पे सुन रहा है, आप ये समझिए कि आपने 100 साल तक जिंदा रहना है. आपकी जितनी आज की उम्र है, आपने उसी उम्र में 100 साल में पहुंचना है. That should be the goal. So maintaining, preventing damage and maintaining जो आज है, that should be the goal. तो उसके लिए Dr. Gaurav, I don't agree with you. Sorry, ma'am? I don't agree with Dr. Gaurav because see, this question has come only at the time of COVID. So those who did not handle, no, I'm telling, let me speak first. Those who did not handle pets earlier, they cannot be that much, they cannot have that much attachment with the pets. Many people are there, those who cannot be that much attached with the pet. Moreover, if we keep pet, so much of work has to be done with that pet. So we all are senior citizens. We cannot give that much time for the pet. Only is, and you are talking about that affection, it gradually comes. So I don't agree with Dr. Gaurav. That affection, it takes long time to get attached with the pet. Ranjana ji, I'll just come to you. Very pleasantly, Neelu ji is showing her pet. The question is that I agree with you. इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि हर कोई पेट नहीं रख सकता, लेकिन आप उनकी लिस्ट देखिए, उस लिस्ट में केवल एक आइटम पेट का है, बाकी 6 चीजें और हैं. The question is that everybody will have his own choice. मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. The choice has to be taken.
I was only asking, जो आपने बात कही यही मैंने पूछा कि अगर हमने सपोज एक नई हॉबी गार्डनिंग शुरू कर दी, आप पेट छोड़ दीजिए। Yes, right. एक मिनट, गार्डनिंग में भी काम लगेगा, तो जब अच्छा फूल लगेगा आपको खुशी होगी कि देखो मेरी मेहनत काम आई है। So the purpose here with Dr. Gupta is saying that do any activity which involves physical activity, which involves आपका दिमाग सोचने मजबूर हो और उसमें pleasure हो। Dr. Gaurav, anything else that you would like to add? 3 things, remember. It should be involving physically, mentally, and there should be pleasure. Yes, Gaurav. देखिए, हर एक चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हमेशा होते ही हैं। That's और right. पेट का मतलब कोई डॉग से नहीं है। पेट कैन बी ए फिश, पेट कैन बी ए रैबिट, पेट कैन बी ए क्लैरी, पेट कैन बी, आप किटन को अपना, किटन को आप, मेरे एक मित्र हैं एनेस्थेटिस्ट हैं और फोर्टिस का आईसीयू देखते हैं, और बड़े कोविड के टाइम में ही मस्ट हैव गॉन थ्रू वेरी ट्रॉमेटिक टाइम। एंड उनके यहाँ एक दिन वो घर आ रहे थे तो एक बिल्ली का बच्चा रास्ते में विद द ब्रोकन लेग उन्हें मिल गया, उसको घर पे ले आए। एंड समवेयर वो घर आते थे तो उनको सडनली एक चेंज मिला कि किटन से, नाउ डॉग इज नॉट द पेट, डॉग इज वन ऑफ द पेट, one of the common pet, but there can be many pets. And lot of times, see, in India we all are from the good class and we all must have 1 attendant, 2 attendant, and अगर हमें थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग रख के चलना चाहता हूँ। और हर चीज के लिए कुछ ना कुछ प्राइस तो है ही ना मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। It takes long time to get habituated and to get attached with the pet. No, ma'am, you don't need to be attached. Ma'am, there are people, आप घर पे मत लाइए। देखिए, पेट के ऊपर इतना डिस्कशन मत करिए। मुझे लगता है कि एम ये है कि हमें एजाइल रहना पड़ेगा। That's right. That's right. The purpose is that लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं and we reach a situation where we become totally dependent on others. Now, if we remain agile, if we remain motivated, if somehow we can get some focus in life, let's say for 2 hours a child comes of your maid and you spend time with that child, maybe that will activate you. Lot of times, सर ने ये आज मुझे मोटिवेट किया, मैं कल से ये सोच रहा हूँ, मैं आराम से अपनी लाइफ लीड कर रहा था। 2 दिन से मेरे को स्लीपलेस नाइट हो गई। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन क्या बनाऊं, और टॉपिक इतना ज्यादा अजीब सा था और सर का फोन आया तो मैं मना नहीं कर पाया। It's only 2 days. Sunday evening I received a call and आज मैं आ गया आप लोगों के बीच में। But this all excited me. This all made me look into the internet, look for the options, and मैं बहुत सारी नई चीजों को जान पाया। And that's how the life is. देखिए, कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके बीच में आया, मैं अपने थॉट्स रखूंगा, आपको हो सकता है कोई चीज उससे फायदा हो जाए। डेफिनेटली कोई, आई थिंक इजी सॉल्यूशंस ना मेरे पास है ना आपके पास है, वरना तो हम लोग यहाँ पे शायद बहुत आराम से अपनी जिंदगी निकालते। देखिए, परफेक्शन नहीं है, और दूसरी बात, वी आर ऑल डिफरेंट। आपको पता है, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, सबकी ये जो अंगूठे की जो फिंगरप्रिंट है totally different है। We are all different. My wife in the morning, हमारे घर के बाहर एक तार है, उसके ऊपर एक स्क्विरल आती है। अब इतने दिन से वो स्क्विरल को, एक दिन ब्रेड बची हुई थी तो उसने थोड़ी सी स्क्विरल ब्रेड बाहर फेंक दी। अब रोज सुबह 7 बजने में 5 मिनट पे वो स्क्विरल आ जाती है।
के अंदर तो आती नहीं, बट माई वाइफ हैज ए पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे नथिंग कैन हैपन। अगर मैंने चाय मांग ली तो भाई साहब बाहर निकल जाओ, जो मेरी स्क्विरल आने वाली है। तो एक थॉट प्रोसेस है ना। डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं, हमें आज चैलेंज क्या है एल्डर्स को, हमें चैलेंज क्या है कि हम ना कुर्सी पे लेट जाते हैं, अब तो क्या करें, अब तो जिंदगी बेताली, अब तो चल रहे। देखिए डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं कि 2 दिन से वो परेशान थे कि मैं बोलूंगा क्या। आई रियली एंजॉय हिज स्टेटमेंट, आई रियली एंजॉय, बिकॉज एवरी डे आफ्टर टुडेज सेशन मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि मैं अगले ट्यूसडे किसको बुलाऊंगा। So remember, the purpose is to keep yourself mentally busy, जिसमें कि आपको अच्छा लगे और प्लेजर आए। जब हम सब इस सेशन को खत्म करते हैं, when I see those smiling faces, that is my motivation कि next week I must do something else. So if I do it और आप सब बिल्कुल चुप चढ़ के बैठे, मैं कहूँगा जा दफा हो जा, अगले हफ्ते मैं नहीं करूँ। So remember, Dr. Gupta is giving a message that if you don't keep yourself active, आपके ना टॉर्च में सेल्स रखे होते हैं, अगर 6 महीने तक आप उस टॉर्च को ऑन ऑफ नहीं करोगे ना, तो वो सेल्स अंदर अंदर पड़े पड़े रस्ट हो जाते हैं। So don't allow your brain to rust. Keep putting it on and putting it off. अगर आप पुटिंग ऑन टॉर्च करेंगे और आसमान में करेंगे तो कोई आके कहेगा रंजना जी पागल हो गई है, तो उसकी जगह पे आपने टॉर्च लेके घर में जाले देखने शुरू कर दिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि घर में जाले साफ हो गए, भाई ये तो टॉर्च बहुत बढ़िया है। सो जो भी करें उसमें फिजिकली आपकी जरूरत पड़े, शरीर को हिलना पड़े, दिमाग को सोचना पड़े और उसमें मजा जरूर आए। I think that is what he's saying, because that is a solution. That is a solution he is suggesting for prevention of loneliness. Loneliness is a disease. So today he is talking to you about prevention. Dr. Gupta, if I am partially anxious person, मैं anxious बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मुझे कोई मेरे सर्वेंट ने कहा कि 7 बजे चाय आनी है, 7:05 हो गए तो मैं इरिटेट होना शुरू हो जाता ना। इफ मेरी पर्सनैलिटी अगर ऐसी है, सारी उम्र मैंने फाइल्स बिल्कुल जल्दी काम किया है, तो मैं अपने आप को एक परफेक्ट इंसान समझता हूं। अब मेरे हालात नहीं है कि मैं वो परफेक्ट रहूं। ये अगर क्लैश होगा तो विल दैट बिकम ए प्रॉब्लम फॉर मी टू रिमेन relaxed and pick up something new? Definitely sir, basically यहाँ पे क्लियरली एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को दिख रहा है कि मेरी जो अपने से उम्मीदें हैं मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मैंने आज तक जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाया या जैसे मैं अपनी लाइफ को लीड कर रहा था, आज मैं उन आप म्यूट हो गए डॉक्टर गुप्ता जी। तो मैं उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज लीडिंग टू लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ गिल्ट। अब ये एक्सपेक्टेशन जो है ये बड़ी खराब सी चीज है, मुझे फंसा दे रही है, बीमार कर दे रही है। अब एक्सपेक्टेशन तो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए ना। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अगर इस उम्मीद को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कि भाई अब मैं विद एज ये एक्सपेक्टेशन तो अनरियलिस्टिक हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्विंग माय प्रॉब्लम्स। अल्टीमेटली तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट थी। मैं ऐसा क्यों करता था? मैं ऐसा इसलिए करता था जिससे मुझे अच्छा लगता था, और अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, देन आई शुड एक्सेप्ट दिस। इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। 2000 में
मेरे को डॉक्टर्स ने कहा भाई आपको तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और आपकी तो जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होने वाली है, खाओ दवाई। चालू कर दिए स्टैटिन। अब स्टैटिन खाए तो हाथ पैरों में दर्द रहने लगा। मुझे लगा यार ये अजीब सी मुसीबत है, ना खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खाओ तो मजा ही नहीं आ रहा था जीवन में। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। करीम मौलाना जात से मैं और सर दोनों पढ़े में। करीम इज लाइक आवर नेक्स्ट डोर नेबर। हफ्ते में 3 बार जाके करीम पे रेड मीट खाते थे। सब कुछ खत्म। अब क्या करें? अब देखिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं फ्रस्ट्रेट होके गलत खाऊं और ज्यादा बीमार पड़ूं, या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं कि बॉस ये ग्रीन तरकारी में भी हो सकता है कुछ खास बात हो। और धीमे धीमे मुझे वही खाना अच्छा लगने लगा। आजकल आई लुक फॉरवर्ड कि यार कोई ना कोई ग्रीन वेजिटेबल्स तो होनी ही चाहिए डिनर में। मेरे बच्चे अभी उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे मैं बिहेव करता था। वो देखते भी नहीं है ग्रीन वेजिटेबल की तरफ। उनको अपना जंक फूड या उनको अपना उसी तरह का खाना चाहिए। Now if I can adopt, why can't we all adopt? Why we have to resist? And if we keep resisting, we will keep remaining frustrated. हम लोग अपना आप से frustrated रहेंगे और कभी भी अपना आप को खुश नहीं रख पाएंगे। Very nice. I think हमें अपना आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चेंज लाइफ का एक इनएविटेबल हिस्सा है। हम सब लोग बदलते हैं और बदलना चाहिए। हम जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे उतने अच्छे से ही हम लोग अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। इमोशनली वेलबीइंग इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सेप्टिंग योर रियलिटीज। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक उसे रेजिस्ट करते रहेंगे, तब तक फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। एंड वंस वी एक्सेप्ट दैट दिस इज व्हाट इज द रियलिटी, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी लाइफ को लीड करना। I think Gaurav has brought out a beautiful line. मैं सबके लिए रिपीट करता हूँ। मैंने लिख लिया। I've written this because I will put it down. I have a list in my computer में मैं important and interesting lines हमेशा नोट कर लेता हूँ। Look at this line. Let's listen to it carefully. Expectation should be proportional to reality. It is such a wonderful line. जो मेरी आज की हालत है, जो आज कर सकता हूं, मैं उस दायरे में एक्सपेक्टेशन करूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हार गया हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूं। इसका ये मतलब है कि मैं कॉन्शियसली अपनी कंडीशन देख रहा हूं, उसके मुताबिक अपनी एक्सपेक्टेशंस रखूंगा। That does not mean कि you can stop challenges. डॉक्टर गुप्ता, इसी के साथ जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन है। मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा फ्रैक्चर हील हो गया, अब मैं आस्ते आस्ते स्टिक से चल रहा हूं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं शिमला जाके सैर करना चाहूं, would that be considered beyond my reality situation? सर मुझे लगता है एक अच्छा सपना या अच्छी मेहनत करने के लिए एक एम या डायरेक्शन होना तो जरूरी है। Unless until we dream for big, how will we achieve? अगर मैं पहले से ही ये सोच लूंगा कि मैं शिमला जाके मॉल पे वॉक नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे लिए रह ही क्या जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करने के लिए गोल और डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। And I think having a good goal or dream is very good and very rewarding. So I think if I put the right effort, I will be able to do it. Very good, very good. So I think मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं सबको। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, मैं एक होमवर्क दूंगा सबको। Next week, I want each of you to send me a message कि आपने इसी दायरे मीन्स इतनी ही फिजिकल कैपेसिटी से, ये नहीं कि बामरी जी रात को अपने डंबल्स लेके शुरू हो जाएंगे, मैं जी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा साइकिलिंग रेस करने के लिए, हम रोक देंगे बामरी साहब का, उनका वीजा भी कैंसिल करा देंगे।
इसी दायरे में आप कोई एक सोच के ड्रीम, और डॉक्टर गुप्ता सेड ब्यूटीफुल, आई कैन ड्रीम कि मेरी इच्छा है कि मैं जाके शिमला में सैर करूं। अब फिर रियलिटी मेरे पे छाएगी कि मैं जा सकता हूं कि नहीं। चलो मैं कोशिश कर लेता हूं, कोशिश करेंगे 6 महीने, मोटिवेटेड रहूंगा, अच्छी तरह करूंगा, हो गया नहीं हो गया ना सही। सो लेट अस ऑल टेक स्मॉल गोल्स दैट यू विल डू वन न्यू। ईच वन ऑफ यू विल डिसाइड कि मैं एक नई चीज करूंगा। सपोज इवन वेट लिफ्टिंग, वन न्यू फिजिकल एक्टिविटी यू विल ऑल ट्राई। अगर I'm walking 10 minutes, okay, I will try that. I will walk 15 minutes. It's a new goal. And let us see how many of you were able to achieve it. इतना जोर मत लगाना कि हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ जाए। So some challenge you pose to yourself within your physical limits and see if you can do it. So let's try that. Any other questions, please? We leave the floor open for any questions or suggestions on emotional well-being. Yes, Neeluji. I want to share. There is no question. I want to share about my pet. He is Bobby, and he is 5 years old. Your pet's name is Bobby? Yeah. That's my name. Oh. I don't know. I should say sorry or what. But both are the people. मुझे भी रात को आवाजें आती थी कि बॉबी बॉबी बुला रहा है मुझे नहीं पता था बुला रहा है। Thousands a day I say Bobby. My life. He is actually my life, and I want to say it is all positives about having a pet. I am telling you, he keeps me going on and on. इसकी वजह से मैं इसको ड्राइव पर लेकर जाती हूँ, इसके लिए क्या क्या नहीं करती हूँ, and I feel so alive always. Good. And the thing I do, I have kept 2 bowls in my balcony. I think everybody does it, but the kind of food I give to my birds, कभी मैं पूरियां बना के खिलाती हूँ मेरी birds को, और कभी कभी कुछ भी डालती हूँ खास तौर से। And I tell you, Dr. Grewal, जिस दिन मैं अगर लेट हो जाती हूँ ना, मेरी स्पैरोज इतना शोर करती हैं कि मुझे लगता है उठना पड़ेगा। Very and good. I feel so happy. Same with me, Dr. Grewal. मैं एग खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, एग बॉइल्ड एग, और उसका येलो नहीं खाती मैं। तो मैंने भी ऐसे बाहर बालकनी में 2 स्ट्रक्चर बनवाए हुए हैं, और उनमें मैं एक में वाटर पॉट रखती हूँ और एक में मैं मॉर्निंग में राइस डालती हूँ फॉर पिजन्स। एंड ये जो एग का येलो है हार्ड बॉइल्ड, वो मैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट एवरी डे उसमें रखती हूँ फॉर क्रोज। आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी डे दे वेट फॉर दिस योग, एंड वहां बालकनी में बैठे रहते हैं और वहां से आवाजें देते रहेंगे मेरे को बराबर। जैसे ही मैंने एग योग रखा, दे वर सो हैप्पी, और उसको फटाफट खाकर पानी पीकर और दे फ्लाई अप। That is close to nature. That is close to nature. Yes, Bhamri ji. थैंक यू वेरी मच गौरव जी, आपने बड़ा अच्छा एनलाइटनमेंट किया। मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, उसमें ये हमने पढ़ा कि 60,000 थॉट्स आते हैं हर रोज एक आदमी को। Am I right? तो ये बताइए कि उसमें से कितने थॉट्स हमारे हाथ में हैं जो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या इसको एज इट इज ही लेना चाहिए? मतलब देखिए, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है। डेफिनेटली अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे योगीज और सेंट्स हैं जो अपने थॉट्स को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेते हैं। डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि मैं कितना कंट्रोल कर पाता हूँ या आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे, बट हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज को हम लोग नर्चर कर सकते हैं। और जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ऑल दोज थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेन। If you can do that for the prolonged period of time, that means you can control your
speed of thought, your content of thought, all those things are in your control. That means clearly that with practice, we can achieve these kind of things also, that we can control our thoughts. But for a common man, it is very difficult, and especially like lot of time when we are anxious, when we are low, when we are depressed, when we are facing difficult circumstances, it becomes very difficult because those thoughts are so disabling and overpowering कि हम लोग चाहते हुए भी उन thoughts को control नहीं कर पाते. So I would say that shows clearly that meditation is like medicine and anxiety is like disease. So clearly ये बात इस discussion से apparent है. So all of you can try doing meditation for some time, and that will help you to control your thoughts better. Doctor, in continuation. एक मिनट. Very good question. Amrish साहब ने पूछा है. Adding to him, Dr. Gupta, should a person control all his thoughts? No. सर देखिए, लाइफ में हर जना तो परफेक्शन चाहता है ना. तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर सकते, अब शुड आई कंट्रोल तो अपने हाथ में ही नहीं है ना. मोस्ट ऑफ अस, वी आर नॉट सेंट्स, वी आर नॉट बुद्धा, बट इफ वी सी बुद्धा, ही कुड कंट्रोल हिज थॉट. दैट्स व्हाट इज रिपोर्टेड इन द लिटरेचर. देखिए, आप सबके साथ शेयर करेंगे. डॉक्टर गुप्ता, आप, आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गिव योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस. देखिए, हमारे थॉट्स जो आते हैं, थॉट्स के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता. थॉट्स तो आ ही जाएंगे. अब थॉट मुझे आए, मेरे सामने, मैं डॉक्टर हूं, मेरे सामने एक पेशेंट बैठी है, मेरे को थॉट आए दैट आई शुड किस हर. मेरी थॉट को नहीं रोक सकते, लेकिन मुझे एक सोशल ट्रेनिंग मिली हुई है कि ये सोशल ट्रेनिंग के अंदर नहीं आता. तो उस सोशल ट्रेनिंग की वजह से आई से नो डॉक्टर ग्रेवाल, दिस इज नॉट appropriate for you. तो मैं थॉट कंट्रोल कर लेता. इसी तरह आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं, अगर जिसको आप सोशल, आपकी एक ट्रेनिंग मिली हुई है, आपको 70 साल की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के दायरे में डॉक्टर गुप्ता वन शुड कंट्रोल, और वन शुड कंट्रोल विद इन दी एक्सपेक्टेशंस. मेरी ये पहुंच इतनी है, उसके अंदर अंदर मैं रहूं, या मैं कहूं नहीं, ये थॉट तो पाप है. सो दे कैन बी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट्स. Isn't that, डॉक्टर गुप्ता? जी हाँ, मीन्स ही देखिए, थॉट्स में जो पूरा साइकेट्री है वो थॉट डिसऑर्डर बेस्ड साइंस है. एंड डेफिनेटली थॉट्स बहुत तरह के डिसेबलिंग एंड एबनॉर्मल थॉट्स हो सकते हैं, एंड उस टाइम पे एक प्रॉपर हेल्प की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सारे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं जो कि पैरानोइया बेस्ड होते हैं. सो अगर एक लिमिट से ज्यादा थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो एक एबनॉर्मल सी है, उसमें एक ट्रीटमेंट की जरूरत है. बट अगर हम एक कॉमन मैन की बातें करें तो उनको डेफिनेटली जो हमारे 3 मेन सबकॉन्शियस लेवल में थॉट्स को कंट्रोल करने के तरीके हैं. एक ईगो होता है, एक इड होता है, एक सुपर ईगो होता है. नाउ सुपर ईगो इज अ वेरी आइडियल काइंड ऑफ ए थिंग दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड मुझे सबकी मदद करनी है. इट इज टोटली कॉन्ट्रेरी कि भाई मुझे तो लोगों से बस फायदा ही उठाना है. एंड ईगो इज ए बैलेंस ऑफ ऑल दैट. सो समवेयर बहुत सारे तरीके से थॉट्स को एक्सप्लेन किया गया है, बट आई वुड पुट इट कि अगर आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो एबनॉर्मल सी एंड देन यू नीड हेल्प. डेफिनेटली प्रैक्टिकली, सोशली एक्सेप्टेबल वे में ही हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड थॉट एक्सप्रेशन इज एंटायरली डिफरेंट देन द थॉट वी गेट. So that is saying expression of thought, not the way of thinking,
is very, very different for each and every one. Yes, Puri ji. Dr. Gupta, I just want to ask you one thing. जैसे thought process की बात चल रही है, अभी I am 78 years old और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ और अपनी फैमिली के ऊपर लाइबिलिटी ना बनूँ. तो how can I ensure कि I should remain like this till the time I go? Very nice, very wonderful, wonderful, Puri sir, wonderful. Now, देखिए सर, मैं दोबारा से कहूँगा, देखिए, एक है कि हमारे सपने हैं, एक है रियलिटी है. Definitely, we all want to live up to our dream. Whether we are able to live or not, that's a very different thing. So आप जो चाहते हैं, अगर वो अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एफर्ट करिए. And I think if you put the right kind of a effort and maybe some higher power is with you to guide you, to help you, you will be able to achieve that. But अगर ऐसा नहीं होता है, or lot of time we develop in a situation that we are not able to live up to our dream, then you should have a power to accept the reality. yes. circumstances है, उनको एक्सेप्ट करने की शक्ति भी होनी चाहिए. एम केवल सेल्फिश जैसा नहीं है. एम तो एक बैलेंस है. कहीं ना कहीं हम और हमारे सारे परिवार के लोग, सोसाइटी के लोग, सब अपने बेस्ट एफर्ट के बाद भी एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं ले सकते ना. अब ऐसा मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे बोलता हूँ कि जब कोई आइडियल कलर, आइडियल शर्ट, आइडियल पेन, आइडियल खाना ही नहीं है, तो आप एक आइडियल सिचुएशन कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी बॉडी आइडियली रहेगी. So I would say let's accept as it comes and let's enjoy today. You should be happy that till today you are able to live like that and you have enjoyed your independence till now. And what would be the future? You will keep making the effort that future remain the same, but you should accept whatever as it comes. Okay, thank you, Doctor. By force, we will accept it. And Puri sir, we will keep clapping and appreciating your efforts to always remain independent. That was a great question. That was Dr. Gaurav, by force, we'll have to accept. See, sometimes some situation comes, we have to raise our voice. Unless we raise our voice, we will be deprived of so many things. So it is not acceptance in all the situation. I don't think is acceptable. Maybe sometime. Ma'am, I would say that by force is what causes the anxiety and depression. See, destiny is beyond our control and we have to accept as things are. अब आप ऐसा सोचो, 2 दिन पहले मुझे ये थोड़ी सोचा था कि डॉक्टर ग्रेवाल का मेरे को फोन आएगा और मैं आप लोगों से आज इंटरेक्ट कर रहा हूँ. नाउ इट्स लाइक ए सरप्राइज. एंड आज सुबह मैं देख रहा हूँ कि आज तो डिमेंशिया डे भी है एंड मुझे लगा आई कुड कंट्रीब्यूट सो मच बेटर ऑन डिमेंशिया डे. आई एम डूइंग एंड जस्टिफाइंग माय ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ अब मैं फ्रस्ट्रेट होके चिड़चिड़ाता और गुस्सा होता, या मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि शायद ये मेरे लिए अच्छा था एंड मुझे आज आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला. तो जब बाई फोर्स होएगा तो आप में बहुत सारा No, it is not a great situation. It is not a great situation. I am talking of if anything happens all of a sudden, and unless we raise our voice, we'll be deprived of so many things and people will pressurize us. Rajna ji, you're raising your voice to prove your point or to save yourself? Both. Sometimes to save and sometimes to prove myself. Because the argument is weak there. After you raise, the argument is weak there. After you finish your raising your voice, then laugh it off. कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था. अपनी बात भी कह दो और हंस दो. But remain happy. That's important.
Yes, So Bhavri. I would say, see, basically what you are saying, raising your voice and being a psychiatrist, definitely I interact and analyze my own behavior a lot of time. That's right. That's right. And North India, I see lot of time we raise our voice, and that is not maybe anger. That is a way of expressing and Yes, socially yes. acceptable norm. No, Deepak. Absolutely true. Absolutely true. So I would say that raising your voice is a part of our social makeup. हम यहाँ पे अपनी बात को assertively कहने के लिए बहुत firmly, louder voice में कहते हैं. Very true. True. And I think there is nothing wrong in that, because we all live in a society where everyone is literally raising their voice to express their Ranjana so this is not anger. Absolutely. But a lot of time हम लोग उससे खुद ही परेशान हो जाते हैं, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर पाते. Punjabi culture. That's Punjabi culture. So I would say that we have to be more open and maybe lot of time attempt new ways, and that is what the new emotional reaction is. So please try some other ways also. Maybe you find that to be more succeeding. Next time. जी बामरी जी. Yes, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब हम ये थोड़ा सा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेते थे तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता था कि दूसरे की बीबी और अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है. तो ये बताइए, ये नेचर का डिजाइन है या कुछ साइकोलॉजी में इसका कोई रोल है? ये भावनी जी की छिपी हुई इच्छाएं हैं. जो 60 साल है सर, जो 60 साल के बाद यहाँ बहाने से आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो. रियलिटी में आ जाइए भामरी साहब. सर थोड़ा सा एक पीने के बाद इसका जवाब देंगे सर. No, I think let's answer it. कि ये कॉमन स्टेटमेंट है कि दूसरे का बच्चा और दूसरे की बीवी. Before Dr. Gupta answers, I like to just give my view. Let's see Dr. Gupta agrees with me or not. क्या है कि बच्चा पालना और बीवी को संभालना एक सोशल दायरे के अंदर मुश्किल माना गया है. See, it is difficult to बच्चे की देखभाल मुश्किल मानते हैं, और ये माना हिंदुस्तान में कॉमन जोक्स वगैरह सब बने हैं कि बीवी से बड़ा घबरा के रहते हैं, डर के रहते हैं. सो ये दोनों की चैलेंजेस को वो दूसरे के आसान लगता है. सो इट इज एक्चुअली ए रिस्पॉन्स टू ए सोशल सिचुएशन. व्हाट डू यू थिंक? सर देखो, मैं आपको पूरी तरह चैलेंज करने वाला हूँ. ऐसा है ना कि बच्चा तो आपका खुद का रिफ्लेक्शन है, तो आदमी अपने से तो प्यार करता ही है, और बीवी जो है वो तो बाहर से आई है. You always hate somebody who has imposter on your life. Lovely answer. अब आप देख लो, अपने आप को अगर लव करते हो तो अपने बच्चे को लव करोगे, और बीवी तो बाहर से आती है तो उसके माँ बाप की कमी तो ज्यादा ही नजर आती है. हाँ जी. Very good answer. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Gaurav said that was very nice. And remember, all of us, next year, 21st September, I want all of you to be as sharp as you are today. We will take a pledge to each other that we will remain as sharp, as peaceful, and as happy as we are today. Year by year, let us remain the same. And we wish you, Dr. Garewal, to you also. Thank you so much. Thank you, Dr. Gaurav. Thank you very much. Thank you so much, Gaurav. Thank you, sir. Thank you, Dr. Gaurav. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. रमा जी तो नहीं सुन रही थी. रमा जी तो नहीं सुन रहे थे. रमा जी तो नहीं सुन रहे थे. I hope, Doctor, you have also enjoyed our session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful. Wonderful. Thank you, Puri.